ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. ધોરણ 9 વિષય ગુજરાતી, જેમાં ગયા તાસની અંદર આપણે પાઠ 4 વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો. આજે આપણે કાવ્ય નંબર 5 તું તારા દિલનો દીવો એના વિશે અભ્યાસ કરીશું, જેના લેખકનું નામ છે ભોગીલાલ ગાંધી અને તેનો પ્રકાર છે ઉર્મી કાવ્ય. ભોગીલાલ ગાંધીનો જન્મ 26/1/1911 અને તેમનું અવસાન 10/7/2001 રોજ થયું હતું. ભોગીલાલ ચુનીલાલ ગાંધીનું ઉપનામ ઉપવાસી હતું, એટલે કે એમનું પેટ નેમ છે, નિક નેમ છે ઉપવાસી. એમનું ઉપનામ આપવામાં આવેલું છે. ભોગીલાલ ચુનીલાલ ગાંધીનું ઉપનામ શું છે? તો તેમાં તમે જવાબમાં લખી શકો છો ઉપવાસી. તેઓ અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસાના વતની હતા. જેલવાસ દરમિયાન માર્ક્સવાદી સાહિત્યનું વાંચન તેમણે ગુજરાત પ્રગતિશીલ લેખક મંડળનું સંચાલન અને વિશ્વ માનવ માસિકનું સંપાદન દીર્ઘકાળ સુધી કર્યું છે. તેમણે માર્ક્સવાદી એ પશ્ચિમી દેશોની અંદર માર્ક્સવાદ અસ્તિત્વમાં હતો, તો તે સમયે લખાયેલા પુસ્તકોનું વાંચન તેમણે કર્યું છે અને ગુજરાતની અંદર પ્રગતિશીલ લેખકોનું એક મંડળ ચલાવવાનું કાર્ય કરી એનું સંચાલન કરે છે. સાથે સાથે વિશ્વ માનવ માસિકમાં દર મહિને આવતું એક પ્રકાશન છે, તેનું સંપાદન કરવાનું કાર્ય તેઓ જ્યાં સુધી જીવિત રહ્યા ત્યાં સુધી એમણે કર્યું હતું. જ્ઞાન ગંગોત્રી ગ્રંથ શ્રેણીનું તેમણે સંપાદન કર્યું છે. આ ઉપરાંત એમાંથી ખાસ તમે લખી શકો કે તેમના મુખ્ય પુસ્તકો કયા કયા ખૂબ જ જાણીતા છે, તો એક વિશ્વ માનવ અને બીજું છે જ્ઞાન ગંગોત્રી. તો આ ઉપરાંત તેમણે કવિતા, નવલિકા, નિબંધ, વિવેચન અને અભ્યાસ ગ્રંથો તથા સંપાદન અને અનુવાદના 80 જેટલા પુસ્તકો આપ્યા છે. આ કાવ્યની અંદર જેનું શીર્ષક જ આપણને કહે છે કે તું તારા દિલનો દીવો થા, એટલે કે આપણી અંદર રહેલી આત્મશક્તિને આપણે પ્રગટ કરવાની છે, એને જાગૃત કરવાની છે, તેની હિમાયત અહીંયા કરવામાં આવેલી છે. જેમ દીવો પોતાના અંદર રહેલું કોઈ પણ પ્રવાહી, ઘી, તેલ કે દિવેલ એની મેળે એનો ઉપયોગ કરી અને બળે છે, તેવી જ રીતે આપણે પણ એટલે કે મનુષ્ય પણ પોતાના આત્મબળથી જ આગળ વધવાનું છે અને ભીતરમાં રહેલી શક્તિઓનો બળને જ ઉપયોગ કરી પોતાનો વિકાસ કરી શકે છે. પોતાનો જે આત્મબળ છે તેના કારણે જ એ પોતાના માટે સાચો પ્રકાશ પાથરી શકે છે. પારકા પાસેથી લીધેલું તેજ કે એમની મદદ આપણને કોઈ ઉપયોગી નીવડતા નથી. પારકા પાસેથી લીધેલી વસ્તુ કે કોઈ પણ વસ્તુ કે ચીજ આપણે વાપરીએ ત્યાં સુધી જ એ આપણી હોય છે. વપરાઈ ગયા પછી અથવા તો પૂર્ણ થઈ ગયા પછી એ આપણે ફરીથી એની પાસે આશા રાખવી પડે છે, એટલે કે ખૂટી જાય છે. પરંતુ જો આપણા અંતરનું તેજ આપણી પાસે હોય, આપણે આપણી જાતને, આપણા આત્માને ઓળખતા હોઈએ, તો એમાંથી આપણે ખરી પ્રગતિ કરી શકીએ છીએ. આકાશની અંદર આપણને દેખાય છે કે સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા આ બધા પૂરેપૂરા તેજથી ભરેલા હોય છે. તે એમનું તેજ આપણા માટે કોઈ જ કામનું નથી. આપણે આપણી પ્રગતિ કરવી હોય તો એમના તેજનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. એના માટે આપણે આપણી પોતાની આત્મશક્તિને જગાવવી જરૂરી છે. અને પારકા પાસેથી લીધેલું કોઈ પણ તેજ અથવા તો એમના પાસેથી લીધેલી વસ્તુ એ આપણા માટે બહુ એટલી બધી ઉપયોગી હોતી નથી. કવિ અહીંયા કાવ્ય દ્વારા આપણને આપણી પોતાની અંદરની શક્તિઓને ઓળખવાનું અને અંદરની જે શક્તિ છે, તાકાત છે, એને બહાર લાવવાનું આપણા ઉપર ભાર મૂકી રહ્યા છે. પ્રહલાદ પારેખનું બીજું એક કાવ્ય છે આપણે ભરોસે, અને બીજું છે કે એક જ દે ચિનગારી, મહાનલ એક જ દે ચિનગારી. એ કાવ્યની અંદર પણ આવી જ રીતે જીવનને સાર્થક કરવાની વાત કરવામાં આવેલી છે. તો કાવ્ય કા પઠન કરેંગે હમ. તું તારા દિલનો દીવો થાને, ઓરે ઓરે ઓ ભાયા, તું તારા દિલનો દીવો થાને, રખે કદી તું ઊંચી ના લેતો, પારકા તેજને છાયા, એરે ઊંચી ના ખૂટી જશે ને ઉડી જશે પડછાયા, ઓરે ઓરે ઓ ભાયા, તું ઓરે ઓરે ઓ ભાયા, તું તારા દિલનો દીવો થાને, ઓરે ઓરે ઓ ભાયા. કોડિયું તારું કાચી માટીનું, તેલ દિવેલ છુપાયા, નાની સી સળી અડી ન અડી પ્રગટશે રંગ માયા, ઓરે ઓરે ઓ ભાયા, તું તારા દિલનો દીવો થાને, ઓરે ઓરે ઓ ભાયા.
આભમાં સૂરજ ચંદ્રને તારા મોટા મોટા તેજરાયા, આતમનો તારો દીવો પેટાવવા તું વીણ સર્વ પરાયા. ઓરે ઓરે ઓ ભાયા તું તારા દિલનો દીવો થાને, ઓરે ઓરે ઓ ભાયા. તો કવિતાની સમજૂતી મેળવીશું. પ્રથમ પંક્તિની અંદર કવિ કહે છે કે તું તારા દિલનો દીવો થાને, ओरे ओरे ओ भाया, यानी तू अपने लिए खुद अपना प्रकाश उजागर कर, यानी कि तू खुद अपना दिया बन, अपना पथ दर्शक बन, किसी पे डिपेंड मत रहे. हमें आगे बढ़ना है तो हमें खुद ही मेहनत करनी होगी, हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना होगा. दूसरों पर यदि हम डिपेंड रहते हैं तो हमारा जो कुछ भी करने का काम रहता है उसके लिए हम उसकी राह ही देखते रहते हैं. यदि वो सामने वाला कुछ कहेगा तो हम करेंगे, ऐसा बन जाता है, ऐसे बन जाते हैं. यदि वो कुछ नहीं कहता है तो हम वो काम भी नहीं करते, उसमें हमारी कुछ भी पहचान नहीं होती. दूसरे हमें कब तक हेल्प करेंगे? हमें कुछ भी हो अपनी पहचान बनाने के लिए दूसरों की एक बार दो बार आप हेल्प लोगे, वो आपको हेल्प भी करेंगे, लेकिन बार बार आप उसके पास हेल्प मांगने जाओगे तो वो भी आपको अब मना कर देगा. वो कोई ऐसा बोलेगा कि अब तुम खुद से कर लो, मुझसे नहीं होगा. हमें खुद ही अपने आप की हेल्प करनी है, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है. हमें साथ ना दे दूसरे तो भी हम अपने आप अपना काम कर सकते, ऐसा बन सकते हैं. इसलिए हमें अपने आप पर डिपेंड रहना है. दूसरी लाइन में बोल रहे हैं, रखे कदी तू उछीना लेतो पारका तेजनी छाया. भूल से भी तू कभी किसी से कुछ भी चीज़, यहाँ पे उन्होंने लिखा है स्पेशली तेज अने छाया, यानी कि तेज यानी प्रकाश और छाया यानी उसकी छत्र छाया. यदि आप दूसरे लोगों के पास उनकी रोशनी, उनका प्रकाश या उनकी छाया मांगते हो उधार में, तो उधार में ली हुई चीज़ तो थोड़ी देर के बाद ख़त्म भी हो जाएगी और उसके साथ साथ आपने जो उससे मदद ली है वो भी चली जाएगी. दूसरों की मदद कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएगी. यदि हम अपनी मदद खुद करेंगे तो कोई साथ दे या ना दे तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं. जो लोग दूसरों की मदद की आशा में पड़े रहते हैं, वे लोग जब कोई भी काम करते हैं तो उनका कोई भी काम जल्द से ख़त्म नहीं होता है. वे सामने वाले पे डिपेंड रहते हैं कि सामने वाला हमें कब हेल्प करेगा और हम अपना काम करेंगे. वो बोलेंगे कल करेंगे तो हम कल पे डिपेंड रहते हैं, फिर कल बोलेंगे तो कल पे. ऐसे में हमारा पूरा समय निकल जाता है. यदि हम अपने आप पे डिपेंड रहते हैं तो हम जो सोचते हैं वो कर पाते हैं और किसी पे हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ता. तो अपना समय, हम किसी पे डिपेंड नहीं होते तो हम अपना समय, अपना काम खुद से कर सकते हैं. फिर यहाँ तीसरी लाइन में बोला गया है, अरे रे उछीना खूटी जैसे ने उड़ी जैसे परछाया. यानी यदि हम दूसरों के पास से कोई भी हेल्प मांगते हैं तो वो हमारी एक बार दो बार तीन बार ऐसे हेल्प तो कर देंगे, फिर वो हमें खुद से ऐसा बोल देंगे कि तू खुद से कर ले, ऐसी सलाह हमको देंगे. वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे. इसीलिए कहा गया है कि हम अपने खुद के ही हेल्प यानी कि आत्मदर्शक, पथदर्शक बने. नेक्स्ट, कोड़िયું તારું કાચી માટીનું તેલ દિવેલ છુપાયા, નાની सी सड़ी अड़ी न अड़ी प्रगट से रंग माया. यहाँ पे कोड़िયું आपने देखा ही होगा, यानी कि जो मिट्टी का दिया हम दीपावली के दिनों में जलाते हैं उसकी बात की गई है. उसे प्रतीक के रूप में यहाँ पे वर्णन किया गया है. कहने का तात्पर्य यह है कि कोड़िયું यानी अपना शरीर, हमारा जो मनुष्य अवतार में मिला हुआ शरीर है वो काची माटीनु यानी कि कच्ची मिट्टी से बना हुआ है. उसका कहने का अर्थ ये है कि हमारा शरीर नश्वर है
वो कभी ना कभी तो मृत्यु होने ही वाला है, उसका नाश होने ही वाला है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो कभी मरने वाली नहीं है और उसके अंदर इतनी अटूट शक्तियाँ है कि जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। उसी के लिए यहाँ पे तेल और दिवेल छुपाया, अंदर की आत्मा के बारे में बोला गया है कि आपके अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट, बहुत सी शक्ति, बहुत सी ताकत है जिससे आप कोई भी काम कर सकते हो। हमें सिर्फ उसे पहचानना है और उसे बाहर निकालना है। उसी के लिए यहाँ पे सेकंड लाइन में बोला गया है, नानी सी सड़ी अड़ी न अड़ी प्रगट से रंग माया, ओरे ओरे ओ भाया तू तारा दिलनो दीवो थाने। नानी सी सड़ी यानी कि किसी का मार्गदर्शन हमें मिल जाता है तो हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि हमारी जो शरीर कच्ची मिट्टी का उसने उदाहरण दिया है, वो तो भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही रहेगा, लेकिन आप अपने आत्मा को, आप अपने मन को, आप अपने अंदर की जो ज्योति है, अपने अंदर जो असीम शक्ति है, उसे, अपने मन को जैसा बनाओगे वैसा आप बन जाओगे। यदि आपको एक बार अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों के बारे में पता चल जाता है तो आप उससे दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। सिर्फ आपको अपने अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानना है, उसे बाहर निकालना है और उसे बाहर निकाल कर आप कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में जो सोचते हैं वो उसे आप पूरा कर सकते हो, उसे आप पा सकते हो। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये चीज़ मैंने कभी की नहीं तो मुझसे नहीं होगा, यदि आप ऐसा सोचना छोड़ दो और ये सोचो कि मैंने ये नहीं किया है लेकिन मैं कर सकता हूँ, तो दुनिया का कोई भी काम आप इजी कर सकते हो। आपकी जो सोच है एक कच्ची मिट्टी की तरह है और कच्ची मिट्टी जैसे जैसे अपना कार्य करती है तो वो पक्का बन जाती है उसके विरुद्ध में। तो आप भी अपने मन को इतना टैलेंटेड बनाइए, आपके मन के अंदर जो ताकत है उसको बाहर निकालिए, उसकी सोच को बदलिए कि जिससे आप जो कुछ भी सोचे उसको जीवन में पा सके। दिया उसे जलाने के लिए हमने यहाँ पे ऊपर बोला कवि ने कि तेल, दिवेल, घी आदि सबका यहाँ पे प्रयोग किया गया है, लेकिन ये भी यहाँ पे प्रतीक के रूप में ही उपयोग हुए हैं। यहाँ ये तेल, दिवेल, घी जो लिक्विड्स है वो सारे हमारे आत्मबल है। यदि हमारे पास आत्मबल है तो हम अपने आप में छुपी हुई किसी भी शक्ति को, किसी भी ताकत को एक बार पहचान लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें अपने प्रगति के पंथ पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। फिर तीसरी एक प्रतीक का उपयोग किया गया है, नानी सी सड़ी यानी योग्य तक। आपको एक तक मिल जाती है, एक ऐसा रास्ता आपके जीवन में आता है जहाँ से आपका पूरा जीवन डाइवर्ट हो जाता है, यानी बदल जाता है। तो ये नानी सी सड़ी ऐसा एक प्रतीक है जिससे आपका पूरा जीवन टोटली चेंज हो जाएगा। आत्मा सूरज चंद्र ने तारा मोटा मोटा तेजराया, आत्मनो तारो दीवो पेटावा तू वीण सर्व पराया, ओरे ओरे ओ भाया तू ओरे ओरे भा। आकाश के अंदर सूर्य है, चंद्र है और बहुत सारे तारे भी हैं जो रात को, दिन को अपनी रोशनी फैलाकर पूरे आकाश को और पृथ्वी पर अपना तेज फैलाकर पृथ्वी को भी प्रकाशित करते हैं। लेकिन अपने अंदर का दिया जलाने के लिए ये बाहर वाले सभी तत्वों का कोई मीनिंग नहीं रहता है। यदि हम बाहर से ही बहुत सा हमें इंट्रोडक्शन मिलता है, ऐसा करना चाहिए, इसके बाद ये करना चाहिए, इसके बाद वो करना चाहिए, हमको सब कुछ मालूम है, बाहर की सब बातें पता है, लेकिन हम अपने आप को अंदर से नहीं जगाते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। और हमें उसके लिए पहले तो अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, फिर अपने पास अंदर जो आत्मा शक्ति है, जोश है, जुस्सा है,
उसको जगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सूरज दिन को धूप देता है तो आप धूप में खड़े रहेंगे तो आप में ताकत आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब ऐसा है कि हमें अपने आप की आत्मशक्ति को जगाना है और दूसरों पर डिपेंड न रह के अपने आप पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो दूसरों के पास है और हमारे पास नहीं है। भगवान ने सभी मनुष्यों को एक समान ही बनाया है। उनके पास भी जो शक्ति है वही शक्ति हमारे पास भी है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग वे लोग करते हैं और हम नहीं करते। उसके बारे में उन्हें पता चल गया है, इसीलिए वो उससे अपना लक्ष्य सिद्ध कर सकते हैं। उन्होंने 9th में कुछ गोल बनाया है तो हम भी बना सकते हैं ना अपना गोल, कि मैं भी 80% या 90% या 95% लाऊंगी, जिससे हमारा जीवन और बेहतरीन बन जाएगा। हाँ, लक्ष्य बना के छोड़ देने से कुछ नहीं होता है, उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है और अपने आप को जगाना भी पड़ता है कि नहीं, ये भी मेरे से होगा, मैं इसको कर सकती हूँ। जो नहीं होता है उसको आप बार बार करो तो आप उसे आसानी से कर सकते हो। और हर बार वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँ, आप ऐसा सोचना छोड़ दीजिए। वो नहीं कर रहा है तो उसकी मर्जी, लेकिन हम तो करें, हमारे पास तो शक्ति है। यदि आप ऐसा सोचोगे तो जीवन में आप हर समय, हर घड़ी, हर जगह कहीं भी पीछे नहीं रहोगे। कभी आगे यदि आप ऐसा सोच के रहने दोगे कि चलो उसने छोड़ दिया तो मैं भी क्यों करती हूँ, मैं भी छोड़ देती हूँ, तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे कवि ने अपनी आत्मशक्ति को उजागर करके जीवन के अंदर सही पथदर्शक बनके सही मार्ग को प्राप्त करने की बात कवि ने की हुई है। पराये लोगों के पास से जो हमें तेज और छाया मिलते हैं वो तो पूरे समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ उनकी शेष यादें, शेष પડછાયા બાકી રહી જાય છે। તેથી કવિ કહે છે કે પારકાના તેજ અને છાયા ઉછીના લેવાની નહીં। अपने आत्माનો દીવો એટલે કે आत्मशक्ति को जगाना है। दरेक व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति के साथ बहुत आगे बढ़ सकता है, इसीलिए कवि ने यहाँ पे अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए कहा है और इसी आत्मशक्ति का उपयोग करके मनुष्य को आगे ही बढ़ते रहना है। तो पूरे पोएम के आधार पर मनुष्य के अंदर की जो शक्तियाँ है उसका वर्णन किया गया है। માણસમાં રહેલી અસીમ શક્યતાઓને તું તારા દિલનો દીવો થા એની અંદર વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। એના માટે કવિ કહે છે કે માણસની અંદર અસીમ શક્તિ રહેલી છે, તે તેની અંદર જ રહેલી છે અને તે શક્તિના બળે જ તે આગળ વધી શકે છે। તેની અંદર રહેલી શક્તિઓ જ તેને સાચો પ્રકાશ આપી શકે છે। એટલે માણસે પોતાના દિલનો દીવો બનવાની વાત કરી છે। આથી દરેકે પોતાની અંદર રહેલી શક્તિઓને ઓળખીને પોતાના જ બળ વડે હંમેશા આગળ વધવાનું છે। આકાશમાં ભલે સૂર્ય, ચંદ્ર કે તારા ભરપૂર તેજથી ભરેલા હોય, પરંતુ જ્યાં સુધી આપણે આપણું તેજ એટલે કે આપણા અંદરની આત્મશક્તિને જગાડીશું નહીં, ત્યાં સુધી આપણા માટે કોઈ જ કામના નથી। અસ્તુ, સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ।